आप बजट को किस तरीके से देखते हैं? कह बड़ी राहत मिली है, कैसे देखते हैं आप? टैक्स के बदलाव तो ठीक है, लेकिन जो हमारे किसान को एमएसपी चाहिए था वो नहीं दिया। और न्यूक्लियर की बात की, हरियाणा में हमारा गोरखपुर का न्यूक्लियर प्लांट कब से पड़ा है, उस पर कुछ हो नहीं रहा। बहुत से मुद्दे हैं, गरीबों के आवास के लिए कोई बात नहीं, मनरेगा की कोई बात नहीं। अभी आगे देखेंगे, चुनाव है बिहार दिल्ली, उसके लिए ये सब नजर आ रहा है। बिहार को विशेष दिख ही रहा है, साफ दिख रहा है। और कहीं किसी की कोई बात ही नहीं, हरियाणा को कुछ मिला नहीं। See, we have to look at the details before we can really give an intelligent comment about the budget. Because the budget is always, the devil is in the details, and really can't make up our minds one way or the other merely by hearing the finance minister's speech. There has been a slew of new proposals, but one must also see what happened to the proposals announced in the previous budget, because some grand schemes were announced in the previous budget as well. So what is the status of them? And now another slew of schemes have been announced, which will all, even by their own words, will only get fulfilled well after the culmination of this parliament in 2029. So we'll have to see the efficacies of all these schemes, the previous schemes in this. And unless we look at the details, which I will in the next few hours, we'll make a much more detailed comment about the budget. That's quite natural that, I mean, every time a state comes up for election, it seems to be, it gets a disproportionate amount of attention. But that seems to be the political direction in which budgets are made these days. No, I think frankly, the applause you heard from the BJP benches was for the middle class tax cut. We look at the details and that may be a good thing. So if you have a salary, you may be paying less tax. But the important question is, what happens if you don't have a salary? Where is the income going to come from for you to benefit from income tax relief? You actually need jobs. Unemployment was not mentioned by the finance minister in her speech. And the generation of jobs becomes vital because in our country, not only do we have record unemployment, but youth unemployment is particularly grim at the moment. We have the world record in youth unemployment and in college educated unemployed. So what is the method to generate jobs for these people? Then they can get salaries and they can cheer the tax cut. But those who don't have salaries are not going to cheer the tax cut. The other concern that many of us clearly have about the budget is that the overall problems that are facing the economy were not addressed. Where is investment coming from? We've seen a decline in foreign direct investment, and we've seen no investment, no willingness on the part of the domestic investors to come in. 23,000 Indian millionaires have left this country and gone to foreign countries. Where is the investment coming from that will in turn generate more manufacturing that can lead to more exports? You can talk about manufacturing mission and export mission, but how do we get there? I think those details we need to study in more care, but I have not heard in the finance minister's speech enough to cheer in those areas. So lots of announcement for Bihar. Well, with the elections coming up in Bihar, it's hardly surprising that they seem to be giving sops there. Ironic that the party that wants one nation, one election is actually using each election, each state, each year to give them more freebies. They may as well have multiple elections so they can get more applause from their allies. देखो, बजट में एक्सेप्ट इनकम टैक्स जो 12 लाख तक कह रहे हैं, वो भी अभी पढ़ने की जरूरत है कि उसके एनेक्सर में क्या लिखा है, इफ्स एंड बट्स कितने हैं। बाकी तो बजट में कुछ नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट में कोई इश्यू नहीं है, कोई किसानों के लिए कुछ नहीं दिया, कोई गरीबों के लिए नहीं है, कोई नरेगा की बात नहीं करी, कुछ बात ही नहीं करी है। 2047, 10 साल, 5 साल जो बजट होता है ये एनुअल होता है। ये भगवान की कृपा से ऐसे लोग पावर में हैं जो 1 साल की बात ही नहीं करते हैं, 50 साल की बात करते हैं। अरे 50 साल तक आप रहोगे, कौन रहेगा, किसको क्या पता है। तो दे आर नॉट फोकस्ड। दिल्ली इलेक्शन की वजह से एक इनकम टैक्स का काम इन्होंने कर दिया है, वो भी पढ़ना पड़ेगा कि एनेक्सर्स में क्या क्या लिखा है। नथिंग इन द बजट, किसान एग्रीकल्चर के लिए नथिंग। बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं किया, किसान के लिए कुछ नहीं किया, बोले ही नहीं है, इशू ही नहीं है। बढ़िया अंग्रेजी बोलने से थोड़ी बजट बनता है। बिल्कुल दिशाहीन बजट है, इसमें किसी वर्ग को कुछ नहीं मिला। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, यूपी नाम तक नहीं लिया। और गरीब,
गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर होता जाएगा। ये प्राइवेट कंपनीज के लिए इनकी जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको सब कुछ देश को बेचा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सर एग्रीकल्चर से शुरुआत करिए तो कुछ किसानों के लिए कुछ भी नहीं किसानों के लिए। हमारा जितना नॉर्दर्न रीजन है इसके किसान के लिए बात तक नहीं की। किसान धरने पे बैठे हैं, उनकी बात तक नहीं हुई। एमएसपी की कोई बात नहीं हुई। ये टोटली देश को डुबोने वाला बजट है। मैं कहूंगी ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जीत है। ये 240 वोट पर आने की जीत है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल से मिडिल क्लास की यही मांग थी कि हम लोग सैलरी कमाते हैं, उससे ज़्यादा खर्चा हमारा टैक्स में चला जाता है, ना सेविंग होती है ना इन्वेस्टमेंट होता है। आज फाइनली उनकी सुनवाई हुई है, तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। पहली बात ये, बिहार सोच रहा होगा कि काश हर साल चुनाव हो बिहार में, जैसे हमारी जो केंद्र सरकार है उनके बारे में कोई योजनाएं बता सकें। बिहार में चुनाव आ रहा है, 2 तरीके से पता चलता है। ऐसी कोई नई बात यूनियन बजट में नजर नहीं आई है। और जो समाजवादी पार्टी का आज क्योंकि बजट पेश हुआ है, ये 11वां बजट है, लेकिन जो कुंभ हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो जहां आंकड़े दिए जा रहे थे सरकार द्वारा, वहीं समाजवादी की यह मांग है कि जो कुंभ में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जितने श्रद्धालुओं ने, उनके आंकड़े सरकार पेश करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहूलियत पहुंचाए, क्योंकि अभी भी जो लोग जो कुंभ में नहाने आए थे वो भटक रहे हैं और वो अपने परिवारजनों से नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमारी मांग है कि जो गवर्नमेंट है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो आंकड़े निकाले कि आखिरकार कितने लोगों की मृत्यु हुई है कुंभ में और क्या वजह रही है, और क्या यह सरकार जो दोषी ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी। इस आवंटन को आप रिपैकेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ बिहार का नाम लेने से और बिहार से प्राप्त गिफ्ट को पहन लेने से बिहार की सुधि नहीं होती है। बिहार को विशेष राज्य का पैकेज चाहिए। आप जो भी कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, उसके लिए रोड मैप क्या है आपके पास? कुछ नहीं। पटना एयरपोर्ट का पहले से विस्तार हो रहा है, आप यहाँ पर मिथ्या प्रवचन दे रहे हैं। सीधी सी बात है कि बिहार को धोखाधड़ी नहीं चाहिए, उसको एक रास्ता चाहिए कि वो भी गुजरात जैसे राज्य, गुजरात मैं नाम लेके कह रहा हूं, उस तरह की सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। ये नहीं कि छोटे पीनट्स डाल दिए, हे बिहार खुश हो जाओ ना, बिहार आगे बढ़ चुका है। पेंशन क्या लग रहा है सर? भाषण में भी कई बार बिहार का जिक्र आया और साड़ी भी जो पहनी थी वित्त मंत्री ने, उस पर मिथिला पेंटिंग। अब देखिए, साड़ी वाड़ी पे मैं टिप्पणी कभी करता नहीं, करना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि प्रतिबद्धता आवंटन के साथ ब्लूप्रिंट में दिखती है। उस प्रतिबद्धता की घोर कमी है। सिर्फ नाम लेने से उस राज्य का कल्याण नहीं होगा। 60,000 करोड़, न जाने इनके तो करोड़ों पर भी भरोसा नहीं होता, कितना खर्च हुआ। एक इमेजिनेशन का अभाव है केंद्र में और राज्य की सरकार में। वो इमेजिनेशन कहां से लाओगे? उसके लिए कोई तौर तरीका है? बेरोजगारी बिहार का सबसे बड़ा दंश है, उसके लिए कोई ब्लूप्रिंट आपके पास नहीं है। बल्कि आपको एक माफीनामा देना चाहिए बिहार के साथ, उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है। भाई, बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इस साल बिहार में चुनाव है। तो बिहार का चुनाव को रख के सर में रख के उन्होंने पूरा बिहार के लिए एक बजट रोल आउट किया है, जहां पे हर चीज बिहार को दिया है। पिछला बार भी 2024 में जुलाई में जब बजट पेश किया था तो आपने देखा था सब कुछ आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए किया गया था। तो आंध्र प्रदेश का तो चुनाव हो गया, अब इस साल बिहार में चुनाव है। आंध्र प्रदेश में 4.5 साल कोई चुनाव है नहीं, तो सब कुछ बिहार के लिए किया गया। और जहां तक बंगाल का सवाल है, पिछले 10 सालों में जब से ये सरकार सत्ते में आई है, जब से बीजेपी सदन चला रहे, जब से सरकार बनाई है, 2014 साल से आज तक कुछ नहीं मिला बंगाल को, और आज भी इस बजट में बंगाल के लिए कुछ नहीं है। ये दुखद है, अनफॉर्चुनेट है। See, I have to read the budget carefully. There has been a lot of confusion the way the budget has been presented, and she has also said that there will be exemption depending on different categories. For 4 to 8 lakh categories, there is going to be 5% rebate, and then 8 to 12, there's going to be 10%. 12 to 15 lakh, there's going to be 15%. So I have to read the budget first. But I have listened to the budget speech extremely carefully. I think there's nothing for the middle class. They're only trying to fool the people like they've done in the past 10 years. हर चीज में बिहार था,
इंस्टीट्यूट खुलना है तो बिहार, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट होना है तो बिहार। इनको बस अपनी सरकार बचाने के लिए जो है जो क्रच का जो इनके दो हैं उसमें से एक पे विशेष ध्यान दिया है और हर चीज बिहार में घुसाया है। तो राजनीतिक बजट है, इसमें कोई विशेष कुछ नहीं था। सर, आपको लगता है कि क्या जो एनडीए के घटक दल है उनका कहीं ना कहीं दबाव काम आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, दबाव में पूरी सरकार है। सरकार अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, मोदी जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरा बजट उन्होंने निकाला है और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं दिखा। इसमें अब आईआईटी की ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इसमें संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि हमने 100% बढ़ा दिया। मैं खुद वहां से हूं, मैं जिस कमरे में मुझे कमरा मिला था जिसमें मैं सिंगल रहता था, आज उस कमरे में 3 बच्चे घुसे हुए हैं, कबूतरों के लिए ठूस रखा है और ये बता रहे हैं हमने 100% उसमें कैपेसिटी बढ़ा दी। तो कैपेसिटी बढ़ाने की तैयारी तो कुछ थी नहीं, कैपेसिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं।